الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاطات میں اب تک ہماری گفتگو اس مطلب میں تھی کہ جو شرطیں بیع کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری شرطیں معاطات کے اندر پائی جانی چاہیے یا نہیں۔ یہ گفتگو اب ختم ہوئی۔ اب آج جو پڑھنے جا رہے ہیں اسی ذیل میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بیع کے احکام ہیں، کچھ بیع کے احکام ایسے ہیں کہ جو اسی سے مخصوص ہیں، وہ احکام بیع بھی آیا معاطات میں پائے جانے چاہیے یا نہیں۔ جیسے ربوی بیع حرام ہے، تکلیفی حکم شرعی حکم ہے کہ یہ حرام ہے، اور وضعی حکم ہے کہ معاملہ باطل ہے، تو اخذ مال بالباطل ہو جائے گا، اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا۔ آیا جو ربا کا حکم بیع کے اندر ہے وہی حکم معاطات کے اندر بھی ہے کہ معاطات میں بھی ربا نہیں ہو سکتا؟ لین دین کرنے میں جس طرح بیع میں اگر 100 روپے میں 10 روپے اضافہ کر کے لین دین کیا جا رہا ہے تو وہ ربا ہے 10 روپے۔ اسی طریقے سے معاطات میں بھی اگر لین دین کیا جا رہا ہے وہی جنس اور اس میں 10 پیس بڑھا کر کے لین دین کیا جا رہا ہے تو وہی حکم بیع والا اس میں بھی ہے یا نہیں۔ دوسری چیز، دوسرا حکم خیار کا ہے۔ خیار دو قسم کے ہیں، وہ خیار جو متباین آپس میں طے کرتے ہیں، 10 دن کا خیار 20 دن کا نہیں، جسے خیار شرط کہتے ہیں، وہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ متباین اپنے حساب سے رکھتے ہیں، 1 دن 2 دن 10 دن۔ کچھ خیار ایسے ہیں کہ جو شارع کی طرف سے ہیں، مثلا جانور اگر لین دین کر رہے ہیں تو اس میں 3 دن کا خیار شارع کی طرف سے ہے۔ یا خیار مجلس، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یہ کون سا خیار ہے؟ جو خیار مجلس کہلاتا ہے۔ جب تک اس بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو معاملہ آپ نے کیا ہے تب تک آپ کو اختیار ہے، معاملے کو توڑ کر سکتے ہیں، فسخ کر سکتے ہیں، لین دین واپس لے سکتے ہیں۔ تو کہنے کہ وہ خیارات جیسے کہ خیار شرط جو انسانوں کے اپنے اختیار میں ہیں، خیار عیب، خیار غبن، خیار مجلس وغیرہ جو شارع کی طرف سے جعل ہوا ہے، یہ خیارات جو بیع میں ہیں آیا یہ معاطات میں بھی معاطات کے لیے بھی ثابت ہے یا نہیں۔ تو بظاہر تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ معاطات کیا ہے؟ بیع ہے۔ جب بیع ہے تو جو احکام میں بیع ہیں وہ سارے احکام معاطات کے لیے بھی رہیں گے، یعنی ربا کا حکم جس طرح سے بیع میں ہے اسی طریقے سے معاطات میں بھی ہوگا۔ خیار کا حکم جیسے بیع میں ہے ویسے ہی معاطات میں بھی ہوگا، لیکن کچھ چیزیں فرق کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خیار میں اگر احد العوضین میں سے کسی نے مالکانہ تصرف کر کے اس کو بیچ دیا یا غلام تھا آزاد کر دیا، دوسرے لفظوں میں یا تصرف کر لیا ہے یا تلف کر لیا ہے، تو پھر وہ خود بخود لزوم آ جائے گا۔ واضح ہے، یہ گفتگو کر چکے ہیں۔ تو آیا یہ جو ہم خیار کے ثابت کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ خیار کب سے ہے؟ کیونکہ عام طور سے جو شارع کی طرف سے خیار ہوتا ہے وہ اول معاملہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی معاملہ کیا، خیار مجلس اگر 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خیار مجلس آ جائے گی۔ اثر کب ظاہر ہوگا؟ جب آدمی معاملہ کو توڑنا چاہے گا، یا بندوں نے آپس میں ہی متباین نے آپس میں ہی طے کیا ہے کہ ہم 50 دن تک یا 1 مہینے تک ہم کو اختیار ہوگا، آپ معاملہ باطل کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے، میں معاملہ باطل کرنا چاہوں مجھے اختیار ہے۔ تو خیار تو شروع ہو گیا ہے کہاں سے؟ جس دن آپ نے لین دین کیا ہے، لیکن اس کا اثر کب ظاہر ہوگا؟ جس وقت اس خیار کو استعمال کرنا چاہیں گے۔ لیکن اگر 50 دن کے اندر کیا 5 دن کے اندر کسی ایک نے اس میں سے کیا کیا، آ کر کے کہہ دیا کہ دیکھیے ہم نے رکھا تو تھا 50 دن کا خیار، لیکن یہ لیجئے 10 روپیہ اور آج سے خیار آپ کا ختم، یہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ اسقاط خیار 10 روپے میں یا 10,000 میں جتنے میں بھی اسقاط خیار حق ہے، مگر اس کو اسقاط کرنے کا بھی حق ہے۔
या मामला किया, मामला करने के बाद अगरचे 1 महीने का ख्याल रखा है, लेकिन उनमें से किसी एक ने उस शय के ऊपर जो मुआतात में लेन देन की है, मालिकाना तसर्रुफ करते हुए उसको इस्तेमाल कर डाला, तलफ कर डाला, बेच दिया, हिबा कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो क्या होगा, तरफ मुकाबिल जो गया है वो लाजिम हो जाएगा, लुज़ूम आ जाएगा। तो कहने की ये अहकाम 2 हुक्म, अलबत्ता खास तौर से यही 2 हुक्म, रिबा का और खियार का, ये जो बै का हुक्म है। अब तक जो गुफ्तगू हो रही थी किस में हो रही थी, शर्तों में गुफ्तगू हो रही थी कि बाय कैसा होना चाहिए, मुश्तरी कैसा होना चाहिए, समन कैसा होना चाहिए, मुस्मन कैसा होना चाहिए। वो जो 7-8 शर्तें बै में जिक्र हुई हैं, जो आगे जिक्र होंगी, उन शर्तों के ऊपर गुफ्तगू थी कि जो जो शर्तें बै में पाई जाती हैं, आया मुआतात में भी पाई जानी चाहिए या नहीं पाई जानी चाहिए। आज जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसी के झैल में कि वो अहकाम जो बै के हैं, आया वो अहकाम भी मुआतात में जारी होंगे या जारी नहीं होंगे। खुलासा कलाम ये कि दोनों हुक्म जो है जारी होंगे, अलबत्ता थोड़े बहुत फर्क के साथ। इबारत पे तवज्जो करें, वलेमा अरफ्ता, और ये जो हमने गुफ्तगू अब तक मुआतात में की है कि मुआतात में शर्तों की गुफ्तगू कर रहे थे, उसी बुनियाद पर उन्हीं सब दलाइल, उन्हीं के पस मंजर में वलेमा अरफ्ता, कहाँ चला गया, नहीं वबेमा ज़करना से पाना है जी। वबेमा ज़करना, ये जो हमने अभी जिक्र किया है कि तमाम शुरूत बै मुआतात के अंदर पाए जाने चाहिए, इसके ऊपर 3 नजरिया 4 नजरिया जिक्र किया और उनके दलाइल भी जिक्र किए, हर एक के शाहिद जिक्र किए, बात खत्म हुई। वबेमा ज़करना से पढ़ना, वबेमा ज़करना, ये जो हमने जिक्र किया है कि बै की सारी शर्तें मुआतात के अंदर पाई जानी चाहिए, यही से यज़हर वजहो तहरीम रिबा फीहा, ऐज़न फीहा लिखा हुआ है, शरहों में बयान किया गया कि फीहा होना चाहिए, फीहा है आपके यहाँ, हाँ फिर अच्छा है। कहने कि यहीं से वाज़े हो गया कि वो तमाम शर्तें जो बै के अंदर, वो मुआतात के अंदर होना चाहिए। यहीं से ये वाज़े हो गया क्या, वजह तहरीम रिबा, रिबा भी हराम है, फीहा मुआतात के अंदर, ऐज़न, ऐज़न यानी क्या, जैसे कि बै में हराम है उसी तरीके से मुआतात भी बै है, तो इसके अंदर भी रिबा लेना हराम है। अगर आप मामला कर रहे हैं गेहूं के साथ, अगर गेहूं को गेहूं के साथ बेच रहे हैं तो जिन्स के फर्क के साथ बेचेंगे तो रिबा नहीं होगा, गेहूं और चावल मुकाबिल में लाएंगे रिबा नहीं होगा। लेकिन अगर गेहूं के मुकाबिल में 100 किलो गेहूं के मुकाबिल में 110 किलो गेहूं ले रहे हैं तो वो 10 किलो क्या हो जाएगा, रिबा हो जाएगा। यही बात मुआतात में भी है, मुआतात में लेन देन करते हुए वही शय है और उसी शय को बढ़ा करके लेन देन कर रहे हैं तो हराम है। कहने की इसी बयान से वजह, वो वजह भी पता चल गई क्या चीज की, तहरीम और रिबा फीहा ऐज़न, मुआतात में रिबा भी हराम है जिस तरीके से बै में हराम है। व इन खस्सना अल हुक्मा बिल बै, अगरचे हमने किताबों में भी देखा है, फुक़हा ने भी बहस किया है कि देखिए रिबा कहाँ हराम है, रिबा का हुक्म कहाँ होता है, बै में होता है। खूब, यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है, मुआतात भी बै है, वलो लफ्ज़ जो है मुख्तस किया है, हुक्म जो रिबा का मखसूस किया है बै से, यानी बै से गई से होता है, बै कौली से होता है, लेकिन फिर भी हम दलीलें जिक्र कर चुके हैं कि मुआतात बै है, और जब बै है तो जो हुक्म उसका है वही हुक्म इसका है, यानी रिबा जैसे बै में हराम है वैसे मुआतात में भी हराम रहेगा। बल के जरिए से तरक्की कर रहे हैं कि अगर बै कहा है मुआतात को तब तो ठीक है, बै का हुक्म इसके अंदर चालू होगा, लेकिन बल अज़ाहिर अत्तहरीम हत्ता इंदा मन ला यराहा मुफीदा लिल मिल्क, हत्ता वो फुक़हा जो मशहूर फुक़हा किस बात के कायल हैं कि मुआतात जो है सिर्फ इबाहा का काम, मुफीद मिल्क नहीं है। मिल्कियत का कायल कौन पहले हुआ है, जनाब मुहक्किक़ सानी, और उसके बाद कहने कि हत्ता वो लोग जो ला यराहा मुआतात को नहीं जानते हैं मुफीद लिल मिल्क, उनके नज़दीक भी तहरीम जाहिर है, क्योंकि वो भी इसको क्या एक मामला समझ रहे हैं। वाज़ेह है मुआतात भी क्या है, एक किस्म का मामला है, भले ही वो मिल्कियत के कायल नहीं है, लेन देन करने के बाद कस्द तमलीक होने के बावजूद
इबाहत तसर्रुफ कायल हो रहे हैं, तब भी यहाँ पर जैसे बय में हराम है रिबा, इसी तरीके से मुआतात में भी रिबा हराम है। लिअन्नहा मुआवज़तुन उर्फिया व इन लम तुफिद अल मिल्क, कहने कि ये जो लेन देन कर रहे हैं और मुआतात में मिल्कियत के कायल नहीं है, कम से कम ये मामला उर्फी तो है। उर्फ में इसे मामला कहा जाता है, मुआवजा कहा जाता है या नहीं कहा जाता है। जब मुआवजा कहा जाता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ के एवज के मुकाबिल में जा रही है, तो फिर ये हुक्म बय रखता है। और जिस तरीके से बय में रिबा हराम है, इसी तरीके से वलो आप मिल्कियत के कायल नहीं है, लेकिन मुआवजा तो है, एक चीज के मुकाबिल में दूसरी चीज एवज के तौर पे जा रही है, भले ही मिल्कियत का फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी चूंकि मुआवजा उर्फिया है, लिहाजा इसके ऊपर हुर्मत का हुक्म जैसे रिबा का बय में है वैसे यहाँ पे भी। एक तरक्की और, बल मुआवजा शरइया, न सिर्फ ये कि मुआवजा उर्फी है, उर्फ लेन देन करते हैं, मसलन एक आदमी किताब दे रहा है, मुकाबले में दूसरा आदमी कॉपी दे रहा है, ये मुआवजा है या नहीं, उर्फ में मुआवजा है। आया मुआवजा शरई भी है, करें जनाब शहीद ने अपने हाशिए में इसका एतराफ़ किया है, उन्होंने इसको मुआवजा लाजिमा और जायज़ा में फ़र्क करके बता दिया है कि अगर ये मुआवजा जायज़ा है तब और मुआवजा लाजिमा है तो शारे के नज़दीक भी जो है क्या नाम है मुआवजा शरई फिर हो जाएगा। बल मुआवजा शरइया, तरक्की देते हुए ये कह रहे हैं कि मुआतात सिर्फ मुआवजा उर्फी नहीं है, एक चीज के मुकाबिल में दूसरी चीज दी जा रही, उर्फ में सिर्फ नहीं बल्कि शरई भी है। कमा एतरफ़ बिहा अश-शहीद रहमहुल्लाह फी मौज़िअ मिनल हवाशी, अपना जो हाशिया उन्होंने कवायद के ऊपर लगाया है उसमें एक दो जगह नहीं कई जगह इस तरह के कलिमात इस्तेमाल की हैं, जिससे पता चलता है कि मुआतात क्या है, सिर्फ मुआवजा उर्फी नहीं है बल्कि मुआवजा शरई है। उनमें से एक कलिमा ये है सो काला, शहीद ने भले उर्फी तो है ही नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने लेन देन को इस मुआवजे उर्फी कहा और कस्द तमलीक के साथ कर रहे हैं, फायदा भले ही मिल्कियत का ना हो, कम से कम मुआवजा तो है। और रिबा का हुक्म जो है कलिमा बय के साथ मुख्तस नहीं है, अगर कलमा बय के साथ मुख्तस होता और मुआतात को आप बय न कहते तब कह सकते कि रिबा का हुक्म नहीं चलेगा, लेकिन जब इस मुआवजे के साथ और रिबा का हुक्म मुआवजे में कलिमा इस्तेमाल हुआ है मुआवजे शरई के लिए, तो इस मुआतात को भी अगर मुआवजे उर्फी कहा तब भी मुआवजे शरई मान लिया, तब तो यकीनन वो हुक्म जो बय में है वो यहाँ पे भी सादिक आएगा, वो जारी होगा। तो जनाब शेख अंसारी साहब इस मतलब को और आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे कि मुआतात मुआवजा है, उर्फ इसे मुआवजा मुआमला समझता है। फिर इसको तरक्की देते हुए कह रहे कि नहीं, शहीद ने जो हवाशी में कलिमात जिक्र किए हैं उससे ये पता चल रहा है कि ये मुआवजा सिर्फ उर्फी मुआवजा नहीं, शारे की तरफ से भी मुआवजा है, मुआवजा शरई है। और जब मुआवजा शरई है तो मुआवजा शरई में रिबा आता है, लिहाजा इस मुआतात में भी रिबा आएगा। बल मुआवजा शरइया कमा तरफ बिहा अश-शहीद रहमहुल्लाह फी मौज़िअ मिनल हवाशी, एक जगह पर है सो काला, जैसे कि उन्होंने ये कहा है। क्या शहीद का इबारत ये है, इन्नल मुआतात, ये जो लेन देन कर रहे हैं ताआती तरफ़ैन जो हो रहा है, ये मुआवजा मुस्तकिल्ला, ये मुस्तकिल मुआमला है। अब ये मुस्तकिल मुआवजा या इसके अंदर मिल्कियत लाजिमा आती है या मिल्कियत जायज़ा आती है। अगर लाजिमा कहा तो शरई भी हो गया, अगर सिर्फ जायज़ा कहा तो जिन्होंने माना है उनके एतबार से। बहरहाल ये इबारत मुआवतात के लिए मुआवजा है, मुस्तकिल है, यानी बय नहीं है, बय से हट करके एक मामला मुस्तकिल है। अगर ये मामला मुस्तकिल है तो अगर सिर्फ जायज़ है तो उर्फ की बात हो गई, लेकिन अगर लाजिम कहा तो ये शरई भी हो जाएगा। तो इस इबारत से क्या पता चला कि जनाब शहीद हवाशी कवायद में ये कह रहे हैं कि मुआतात बय नहीं है, एक मुस्तकिल मुआवजा है। खूब ठीक है, मुस्तकिल मुआवजा है। बय
के अहकाम, जिसमें से एक रिबा है, इसके ऊपर जारी होगा या नहीं जारी होगा? कहने जारी होगा। क्यों? क्योंकि मुआवजा मुस्तकिल भले ही कह रहे हैं, लेकिन एक गुफ्तगू को मुरद्दद कर रहे हैं किस चीज में कि जायजा और लाजिमा में। अगर ये लाजिमा है तो बेशरी जैसा हो गया, लिहाजा इसके अंदर भी मुआतात के और बै के जो हुक्म है यानी रिबा वो भी जारी होगा। वलौ कुलना इन्नल मकसूद लिल मुतआतियैन अल इबाहा लल मिल्क फला यबुद ऐदन जरियारुन रिबा लिकौनिहा मुआवजा उर्फन फतामल। एक मतलब और कह रहे हैं, वो ये है कि अगर हम मुआतात में ये इस बात के कायल हो जाएं कि लेन देन करने वालों ने मिल्कियत का कस्द ही नहीं किया है, क्या कस्द किया है? सिर्फ इबाहा का कस्द किया है, यानी मैं अपने माल को दे रहा हूँ, आप उसको तसर्रुफ करिए, इस्तेमाल करिए, फिर वापस दे दीजिएगा मसलन, और आप मुझे चीज दे रहे हैं उसी के मुकाबिल में फायदा उठाने के मुकाबिल में फायदा उठाने की बात कही जा रही है। वाज़ेह हुई बात? सिर्फ इबाहतु तसर्रुफ है, मिल्कियत नहीं बना रहे हैं। अगर मिल्कियत नहीं बना रहे हैं तो अब सवाल यह है कि ये मुआतात आया इसके अंदर भी बै वाला रिबा का जो हुक्म है वो जारी होगा या जारी नहीं होगा? पहले कह रहे हैं कि जारी होगा, फताअम्मल कह रहे हैं कि नहीं। देखिए रिबा जो होता है वो ऐन शय के ऊपर होता है, फायदे के मुकाबले में फायदा कोई माल नहीं है, ऐन शय नहीं है, ऐन शय पे तसर्रुफ नहीं किया, ऐन शय को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ऐन शय से फायदा उठा रहे हैं, फायदे के मुकाबिल में फायदा, इसके अंदर कोई रिबा नहीं। मसलन आप मेरी किताब पढ़िए, मैं आपकी किताब पढ़ूं, तो यहाँ पे मुतालिया जो कर रहे हैं किताबों से, ये कोई इजाफी और कम ज्यादा चीज तो लेने वाली है नहीं कि इसमें रिबा का हुक्म है। तो पहले तो ये कह रहे हैं वलो कुलना इन्नल मकसूद लिल मुतआतियैन, अगर मुतआतियैन का मकसद सिर्फ क्या हो? अल इबाहा लल मिल्क, मिल्कियत का मसला ना हो बल्कि इबाहत का कस्द किया हो, फला यबउद ऐज़न, फिर भी हम ये कह रहे हैं कि बईद नहीं है जरियानुर रिबा कि यहाँ पे रिबा जारी हो जाए। क्यों जारी हो जाए? लिकौनिहा मुआवजा उर्फन, क्योंकि उर्फ इसे मुआमला कहता है, उर्फ इसे मुआवजा कहते हैं। आपने किताब दी है, मैंने आपको कॉपी दी है, ये जो लेन देन हुआ है आया उर्फ इसे मुआवजा कहता है या नहीं कहता है? मुआमला कहता है या नहीं कहता है? मुआमला कहता है। तो कह रहे कि जब उर्फ इसे मुआमला और मुआवजा कहता है तो इसके ऊपर भी हुक्म हम रिबा जारी करेंगे जैसे बै में जारी होता है। मगर फताअम्मल कह के इससे वापस ले रहे हैं बात को। वो क्या है कि जनाब यहाँ पे आपने शय दी है, मैंने आपको शय दी है, यहाँ पे रिबा जारी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप तसर्रुफ सिर्फ कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर तसर्रुफ सिर्फ कर रहा हूँ, उसको खरीदो फरोख्त या बेच वगैरह नहीं रहा हूँ। लिहाजा फताअम्मल कह के ये बता रहे हैं कि भले ही उर्फ इसे मुआवजा कहता है, मुआमला कहता है, मगर इबाहे के मुकाबिल में इबाहा, तसर्रुफ के मुकाबिल में तसर्रुफ, इसके अंदर रिबा का हुक्म नहीं आता। ये थी गुफ्तगू अब तक किसकी? रिबा के हुक्म की। क्या साबित हुआ अब तक? वो ये साबित हुआ कि जनाब मुआतात बै की तरह से जो हुक्म बै के अंदर है वही मुआतात के अंदर भी जारी होगा। उन अहकाम में से एक हुक्म जो है रिबा का है। बै में रिबा हुआ करता है जब एक शय के मुकाबिल में एक शय उसी जिन्स की लेन देन की जाए और उसमें इजाफा लिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? रिबा हो जाएगा। आपके यहाँ बहुत चलता है ना, बहुत ज्यादा मशहूर है। जी जी, जोली में की बात कर रहा हूँ, और वहाँ मुझसे बार बार आकर के बाज लोग कह भी रहे थे, मगर मैंने इसका उमूमी तौर पे तस्करा किया है, बिलखुसूस नहीं किया कि जो है ये कहें कि किसी के पीछे पड़ गए क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो इसलिए जरूरी है इसकी वजाहत। तवज्जो करें कि एक शय को मुकाबिल में एक शय के लेन देन किया जाए, उसमें कम और ज्यादा होगा तो रिबा हो जाएगा। लिहाजा अब इस मुआतात को आप या तो बै मान रहे हैं मुकम्मल तरीके से उर्फ के एतबार से या शरअ के एतबार से, उर्फी माने या शरई तौर से माने मुआमला है तो बै की तरीके से है, लिहाजा मुआतात के अंदर भी वैसे ही रिबा का हुक्म आएगा जैसे बै के अंदर आता है। अगला मसला वाम्मा हुक्म जरयानिल खियार फीहा, मुआतात के अंदर खियार का हुक्म, जो खियार की सारी किस्मों को मद्देनजर रखें, 7-8 अदद जो हैं, क़ब्ल लुज़ूम, इस मतलब को बहुत तवज्जो, क़ब्ल लुज़ूम और उसके बाद कितने फासले के बाद आएगा? बादल लुज़ूम का
اس کو آخری سطر میں کہیں گے وَأَمَّا حُکْمُ الْخِيَارِ بَعْدَ اللُّزُومِ فَسَيَأْتِي بَعْدَ ذِکْرِ الْمُلْزَمَاتِ، وہاں پہ ذکر کریں گے۔ فی الحال لزوم سے پہلے کیا مطلب ہے؟ لزوم سے پہلے یعنی اگر آپ نے لین دین کیا، معاطات کیا، اور ان میں سے کوئی ایک احد العوضین کسی کے پاس تلف ہو گیا، کیا نام ہے، بلائے آسمانی سے یا خود ہی اس نے اس کو تلف کر دیا، بیچ دیا، توڑ پھوڑ دیا، تو طرف مقابل کی جو شے ہے خود بخود اس کی ملکیت میں ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابل میں یہ تھی، آپ نے اپنی چیز، آپ کو جو معاوضے کے طور پہ آپ کو ملی تھی، آپ نے اس کو تصرف کر لیا، تو اب وہ بغیر اس کو بھی واپس لیں گے تو عوض و معوض ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو آپ نے شے لی ہے، اگر آپ نے اس کو کھا لیا، توڑ پھوڑ دیا، تلف کر لیا، کلی طور پہ تصرف کیا یا تلف کر لیا، تو یہ معاملہ خود بخود لازم ہو جائے گا، خیار کی گنجائش نہیں بچے گی۔ خیار کی گنجائش کب ہوتی ہے؟ جب شے موجود ہو۔ تو کہنے کہ تلف یعنی لزوم سے پہلے، معاملے معاطاتی کے لزوم سے پہلے خیار کا حکم چلے گا، لیکن اگر لزوم پہلے ہی ہو گیا ہے، معاملہ پہلے ہی پختہ ہو گیا ہے، تو اب وہاں پہ خیار کی گنجائش باقی نہیں۔ تو اس لیے ہماری گفتگو جو جریان خیار کی ہے، فیہا یعنی معاطات میں، قبل از لزوم ہے، اور لزوم کی صورت کیا ہے؟ یا تلف یا تصرف۔ تو کہنے کہ اما حکم جریان الخیار فی المعاطات قبل اللزوم فیمکن نفیہ علی المشہور، کہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور کے قول کی بنیاد پر، مشہور کس بات کے قائل ہیں کہ معاطات میں صرف اباحۃ التصرف آتا ہے، ملکیت نہیں آتی، تو اس صورت میں جب یہ اباحۃ التصرف ہوتی ہے تو معاملہ نہیں ہے، یہ تو بے نہیں ہے۔ اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں نفی الخیار، یمکنو نفی الخیار، خیار کی ہم نفی کر دیں گے، نہیں خیار ہے ہی نہیں معاطات میں۔ کس قول کی بنیاد پر؟ مشہور کے قول کی بنیاد پر، کہ مشہور جو ہے جناب محقق ثانی تک سب کے سب اباحہ کے قائل تھے، لہٰذا یہ ایک قسم کا ایسا معاملہ ہے کہ جسے ہم معاوضہ نہیں کہہ سکتے، لأنہا کیونکہ یہ قول مشہور کی بنیاد پر جائزۃ عندہم فلا خیار، جائزۃ عندہم فلا معنی للخیار، جب یہ ایک معاملہ جائز ہے، کسی وقت بھی خود بخود توڑ سکتے ہیں، تو خیار کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ اور توجہ کریے، مشہور علماء معاطات میں اس بات کے قائل ہیں کہ ملکیت نہیں آتی، نہ ملکیت لازمہ نہ ملکیت جائزہ۔ آپ کو ہے، آپ تھوڑی دیر پڑھ لکھ رہے ہیں، میری شے کو اس پہ مطالعہ کر رہے ہیں میری کتاب سے، میں آپ کے امور سے جو شے آپ نے مجھے دیے اس سے تصرف کروں، سائیکل دیے چلا رہا ہوں مثلا۔ یہاں پہ کہنے کہ مشہور کا نظریہ معاطات میں چونکہ کس چیز کا ہے؟ اباحہ کا ہے، ملکیت ہے ہی نہیں، نہ ملکیت جائزہ نہ ملکیت لازمہ۔ جب ملکیت نہیں ہے تو اس کو واپس لینے کے لیے، ملکیت کے لیے واپس لینے کے لیے خیار کے رکھنے کی ضرورت نہیں، جگہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فَيُمْكِنُ نَفْيُهُ نَفْيُ الْخِيَارِ عَلَى الْمَشْهُورِ، یعنی قول مشہور، جو مشہور کا نظریہ ہے اباحہ مجردہ کا، اس کی بنیاد پر۔ کیوں؟ لأنہا کیونکہ مشہور کے نظریے کی بنیاد پر معاطات کیا ہے؟ جائزۃ عندہم، معاطات جو ہے ایک معاملہ جائزہ ہے، فلا معنی للخیار، خیار کی جگہ نہیں ہے، محل نہیں ہے۔ خیار رکھتے ہیں کس لیے؟ تاکہ پھنسنے کے بعد اس کو نکالا جا سکے۔ مثلا آپ کو چیز پسند نہیں ہے، 10 دن کی خیار رکھا ہے، 9ویں دن پتہ چلا کہ یہ چیز کے اندر عیب ہے، یا خیار عیب استعمال کریں، یا 10 دن کا وقت رکھا ہے، خیار شرط رکھا ہے، پسند نہیں ہے بیوی کو، واپس کر دیجیے۔ اگر معاملہ کیا نام ہے لازم ہی پہلے سے نہ ہو تو واپس کرنے کی شرط رکھنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِنْ قُلْنَا بِإِفَادَةِ الْمِلْكِ، لیکن اگر مشہور کے نظریے کے برخلاف علامہ شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نظریے کی بنیاد پر، یا محقق ثانی وغیرہ کے نظریے کی بنیاد پر، وہ لازم کے قائل تھے، یہ ملکیت جائزہ کے قائل ہیں۔ وَإِنْ قُلْنَا بِإِفَادَةِ الْمِلْكِ، لیکن اگر آپ نے معاطات میں تعاطی طرفین کے میں فائدہ ملک کا کیا، ملک ہے، ملک آ جاتی ہے، اگر یہ کہا فَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِ مُطْلَقًا، تو پھر یہاں پہ اس فیہا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، خیر فیہ بھی نہیں، اس معاملے میں آپ کے فیہا ہے یا فیہ ہے؟ اچھا، فیہ بجائے فیہا ہوتا تو اچھا تھا۔ تو کہنے کہ اگر آپ معاطات میں ملکیت کے قائل ہوئے تو ثبوت خیار کی بات کی جا سکتی ہے، وہ بھی مطلقہ،
अब यहाँ में मुतलका से मुराद क्या है? वो खियार जो शारे की तरफ से तय हुए हैं, जैसे अलबय्यान बिल खियार, ये खियार मजलिस किसकी तरफ से तय हुई है? शारे की तरफ से। शारे ने कहा है कि अगर कोई मामला कर रहे हैं, जब तक उस बज़्म में बैठे हुए हैं, कहने की जरूरत नहीं है, जब 10 घंटा अगर आप बैठे हुए मामले को तोड़ सकते हैं। खियार मजलिस आपके पास है। या खियार ऐब, खियार गब्न, बाज खियार ऐसे हैं जो अपने अख्तियार में, जैसे खियार शर्त 10 दिन का है, 1 साल का खियार रखें, ये भी हो सकता है। तो कहने कि चाहे खियार आपकी तरफ से तय हुआ हो, चाहे खियार शारे की तरफ से तय हुआ हो, अगर इफादे मिल्क के कायल हुए हैं तो जो खियार है वो बै की तरह से मुआतात में भी साबित है। वइन कुलना बेइफादतिल मिल्क फयुमकिनु अलकौल बेसबूतिल खियार, यहाँ पे खियार साबित है, फीहा इस मुआतात में कि जिसमें आप इल्फाद मिल्कियत के कायल हुए हैं, मुतलका यानी वह चाहे वो खियारात जो आपकी तरफ से तय हुए हैं, अपने अख्तियार में है, और चाहे शायर की तरफ से। मसलन शायर ने खियार हैवान के लिए 3 दिन रखा है, जानवर का लेन देन, गाय बकरी वगैरह बेच रहे हैं तो 3 दिन का अख्तियार होता है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन खत्म होने से पहले आप उसको मामले को भंग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये जो खियार हैवान है ये शारे की तरफ से है। नहीं, वो तो हमारी बिना ही इसी पे है, गड़बड़ न करिए। हम मान के चल रहे हैं कि लुजूम से पहले क्या, अभी हम वहां पहुंचे नहीं, बादल लुजुम पे अभी पहुंचे ही नहीं। कबल अज लुजुम यानी क्या, इन्हें तलफ नहीं किया है और इस्तेमाल नहीं किया है। शय आपके पास मौजूद है, पैसा आपके पास है, बाय के पास है, मुश्तरी के पास गाय है, 2 दिन हो चुका है। मैं चाहूँ अपना पैसा, मैं चाहूँ तो पैसा वापस दे करके अपना जानवर वापस ले सकता हूँ, वो चाहे तो पैसा अपना ले करके जानवर मुझे वापस कर सकता है। वाज़ेह है। तो ये खियार हैवान क्या है? शारे की तरफ से। शर्त रखिए क्या चीज की, 10 दिन तक जो है, मसलन इसी जानवर को बेचने में शारे की तरफ से तो 3 दिन है, लेकिन आप 10 दिन का शर्त रखें कि देखें भाई, गाय अगर मुझे पसंद आई या मेरे घर वालों को पसंद आई या इसने दूध दिया तो 10 दिन तक मैं मामले को या पक्का करूंगा या तोड़ दूंगा। 7 दिन हो गया, सही है, दूध मसलन नहीं दे रही है या घर वालों को पसंद है, आप उस जानवर को वापस कर सकते हैं। यहाँ जो मुतलका का ताल्लुक है वो कबल अज़ लुज़ुम और बादल लुज़ुम से नहीं, हमारी गुफ्तगू का महवर ही है कबल अज़ लुज़ुम। तवज्जो किया है नहीं? अगर आपके शरअ में ये दिया हुआ है मुतलका की यहाँ पे, तो वो गलत है। यहाँ पे मुतलका से मुराद यही है कि वो खियार जो साबित हैं शरीयत की तरफ से, जैसे कि खियार हैवान, खियार ऐब, खियार गब्न या दूसरे खियारात, और वो खियार जो हम आप रख रहे हैं जिसको हम खियार शर्त का नाम देते हैं, ये भी शारे की इजाजत से है। लेकिन अगर आपने 10 दिन की शर्त रखा है जानवर पर, तो ये 10 दिन के अंदर अगर आपको पसंद आए तो मामला बरकरार रखिए, ना पसंद आए तो वापस कर सकते हैं। मुतलका से मुराद ये। तो कहने की सबूत खियार जहां पे मिल्कियत के कायल हो मुआतात में, वहां बात हो रही है। मुतलका खियार साबित है यानी शरई खियारात भी, और जो हमने आपस में तय किए हैं जिसे खियार शर्त करते हैं कहते हैं, वो भी वाज़ेह है। क्यों इस तरह से आप कहने की ये खियार साबित है? बिना अन अला सैरूरतिहा बैअन, क्योंकि बाद अल लुज़ुम तो ये बै हो जाएगा, लुज़ुम के बाद की बात नहीं हो रही, क़ब्ल अज़ लुज़ुम बात हो रही। कमा सयाती इंदा तअर्रुज़िल मुल्ज़मा, जहाँ पे हम इन खियारात के साबित होने और ना साबित होने की गुफ्तगू करेंगे, वहाँ पे बयान करेंगे। अगर तलफ कर दिया है या बाज़ हिस्सा तलफ कर दिया है तो अब वो वापस तो नहीं हो सकता, या तो वही शय वापस लीजिए, कम बेश करके अर्श, और जो कमी वाक़ई हुई है उसको जो तोड़ दिया है, या कोई चीज़ ऐसी है जिसमें कुछ नुकसान कर दिया है और अब मामले को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको उसके बदल में जो चीज़ जितनी तोड़ी है उसका अर्श लेने का हक होगा। कहने कि क्यों हम यहाँ पे खियार के साबित होने को मान रहे हैं और इससे पहले आपने तस्लीम नहीं किया। वहाँ पे कहा कि वो मामला नहीं है, जहाँ पे इबाहत तसर्रुफ है, वहाँ पे मसलन जहाँ पे मिल्कियत के कायल हो जाएंगे तो ये मामला है और इस पे खियार साबित होगा। एक मरतबा इबारत पे तवज्जो करिए, कहने की व इन कुलना बेइफादतिल मिल्क, अगर आपने मुआतात में मिल्कियत का कौल अख्तियार किया,
فَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهَا، تو اس معاطات میں خیار ثابت ہے۔ مطلقہ کون سا خیار ثابت ہے؟ وہ خیارات جو شارع کی طرف سے طے ہوئے ہیں یا آپ نے رکھا ہے 10 دن کا، دونوں خیار ثابت ہیں۔ کیسے اس مطلب کو کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب ملکیت کا، توجہ کریں، جب ملکیت کے افادت کی بات کہہ دی ہے تو یہ بالکل کیا ہے؟ معاملہ ہے، بے کی طرح سے ہے، بناءً علی سیرورتھا بیعًا، کیونکہ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاطات کیا ہے؟ بے ہو گیا ہے۔ بعد اللزوم یعنی کیا؟ بعد اللزوم یعنی خیار کے استعمال نہیں کیا، اب لزوم آ گیا ہے، اور وہ جو مطلقہ تھا وہ اسی خیار کے تقسیم بندی تھی۔ کما سیاتی عند تعرض الملزمات، جیسا کہ ہم جب گفتگو کریں گے کہ کون کون سی چیزیں بے کو لازم قرار دیتی ہیں، وہاں پہ گفتگو کریں گے۔ فالخیار موجود من زمن المعاطات، جیسے ہی آپ نے لین دین کیا، یہ خیار، چاہے خیار شرط رکھا ہو 1 مہینے کا اور چاہے خیار حیوان ہو 3 دن کا، یہ جیسے ہی آپ نے معاطات کیا اسی وقت سے خیار ثابت ہو جائے گا، موجود ہو جائے گا۔ فالخیار موجود من زمن المعاطات، خیار ثابت ہے، پابرجا ہو گیا ہے زمانے اعطاء طرفینی سے، الا، مگر اس کا اثر کب ظاہر ہوگا؟ الا ان اثرہ یظہر بعد اللزوم، لیکن اس کا اثر جو ظاہر ہوگا وہ لزوم کے بعد ہوگا۔ لزوم کے بعد ہوگا یعنی کیا مطلب؟ اس لزوم سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر آپ نے عین میں تصرف کر لیا، آپ نے عین میں تصرف، اور ہم نے رکھا تھا 10 دن کا خیار، آپ نے تصرف کر لیا بغیر بتائے، 10 دن کا تصرف، 10 دن کا موقع تھا، آپ نے سمن خرچ کیا، آپ خرچ کر چکے، ہمیں 10 دن کا مجھے موقع تھا، 9ویں دن میں آپ کی گائے واپس لانے آپ کو دے رہا ہوں، مال آپ نے کہیں پہ بھی صرف کیا ہو، مجھے اختیار ہے گائے واپس کرنے کا، پیسہ اپنا واپس لینے کا، یا جزء حصہ یا تلف کر دیا ہے، تو لزوم کے بعد، معاملہ پختہ ہو جانے کے بعد جو خیار جتنے دن کا ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ الا ان اثرہ، مگر یہ کہ اثر خیار جو ظاہر ہوگا، یظہر بعد اللزوم، لزوم کے بعد ہوگا، اور یہاں پہ لزوم سے مراد کیا ہے؟ یا آپ نے اس شے کو مکمل طریقے سے تصرف کر لیا ہو، تلف کر لیا ہو، یا بعض حصہ اس کا تلف کر دیا ہو، تو اس صورت میں میرے خیار جو رکھے ہوئے ہیں اس خیار کو مجھے استعمال کرنے کا حق ہے۔ اب میں اس خیار کو استعمال کر رہا ہوں، مثلا 10 دن کا رکھا تھا، اس 10 دن کے خیار کے بعد اگر آپ نے مقابل میں جو شے لی ہے، یا اس کو بیچ دیا، یا اس کو عتق کر دیا، یا اس کو ایسا مالکانہ تصرف کر لیا کہ معاملہ ختم ہو گیا، تو یہ معاملہ لازم آ جائے گا۔ معاملہ لازم ہوا، لیکن خیار کا اثر کب ظاہر ہوگا؟ اب ظاہر ہوگا، میں چاہوں تو اس کو واپس لے سکتا ہوں۔ وعلی ھذا، اس بنیاد پر کہ خیار تو ثابت ہے ابتدا سے، یعنی زمانہ خیار کب سے ہے؟ معاطات جب سے کیا ہے تب سے ہے، مگر اثر ظاہر ہوتا ہے بعد میں، کہنے وعلی ھذا فیصح اسقاطہ، اس خیار کو اسقاط کرنے کا حق حاصل ہے۔ 10 روپیہ لے کر کے میں نے مثلا 10 دن کا رکھا تھا خیار، میں 9ویں دن آیا، دیکھا کہ انہوں نے چیز کو ختم کر دیا ہے، اب مجھے حق تو ہے نا خیار کا، میں چاہوں تو اس خیار کو استعمال کر سکتا ہوں، چاہوں تو 10-20 روپیہ لے کر کے اس خیار کو ساقط کر سکتا ہوں۔ تو وعلی ھذا، جب وعلی ھذا پہ توجہ کریے، وعلی ھذا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب خیار ثابت ہے زمانہ معاطات سے، اور آج 5 دن کے بعد انہوں نے گائے کی قیمت کو استعمال کر لیا ہے، اور ہم نے رکھا کتنے دن کا؟ 10 دن کا خیار ہے، 5 دن کے بعد آئے تو انہوں نے سمن کو ختم کر لیا، میں کہوں گا بھائی ہم نے تو 10 دن کا رکھا تھا، خیار حیوان شریعت کی طرف سے تھا 3 دن کا، اور ہم نے جو خیار شرط رکھی 10 دن کا، یہ خیار ابتدا سے ہے، آج آپ نے 5 دن کے بعد پیسے کو استعمال کیا یا گائے کے مقابل میں جو شے لی تھی اس کو تلف کیا تھا، تو آج اثر ظاہر ہوگا۔ اس اثر کے ظاہر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اثر کے ظاہر ہونے کا فائدہ 2 ادا ہے، یا اس کے اوپر مصالحت کر سکتے ہیں، یا اس سے اس کا جو جتنا تلف ہوا ہے اس کا بدل لے سکتے ہیں، یا خیار ساقط کر سکتے ہیں۔ وعلی ھذا، جب زمانہ خیار جو ہے زمانے معاطات سے ہے، فیصح اسقاطہ، اس خیار کو آپ ساقط بھی کر سکتے ہیں، والمصالحہ علیہ قبل اللزوم، یا لزوم سے پہلے اس کے اوپر آپ مصالحت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور، وہ یہ کہ بعض خیارات جو بیع کے لیے ثابت ہیں
वो इसमें जारी हों और बाज़ ख़ियारात जो बै के लिए साबित हैं मुआतात में जारी ना हों। वो ख़ियारात जो मखसूस बै के लिए हैं वो मुआतात में ना जारी हों, क्योंकि ये बै जैसा बिल्कुल नहीं है। और वो मुआतात जो मुआवज़ह के उन्वान से शारे ने साबित किया वो हो सकता है साबित हो जाए। तवज्जो करें यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। वयहतमिलु अन युफस्सल बैनल ख़ियारातिल मुख्तस्सति बिल बै फला तजरी। वो ख़ियारात जो मखसूस बै के लिए शारे ने रखे हैं वो मुआतात में जारी ना हो। मखसूस किसे कलेमा, तवज्जो करें, अगर शारे ने ये कहा हो कि जहाँ पे पक्का बै हो रहा है, बै कौली, अगर वो है तो ये ख़ियार है और अगर वो नहीं तो फला ख़ियार नहीं है, तो कहने कि वो ख़ियारात जो मुख्तस बिल बै हैं वो ला तजरी, मुआतात में वो जारी ना हो। क्यों? लिख्तिसास अदिल्लतिहा, क्योंकि उन ख़ियारात की दलीलें मखसूस हैं बेमावुज़िया अलल लुज़ूम, जो लुज़ूम पर मुब्तनी है, यानी बै से गई असली हैं, मिन गैर जहतिल ख़ियार, उसमें ख़ियार की गुंजाइश नहीं है। अगर वो ख़ियारात जो बै से मुख्तस किए हैं शारे ने, जिनकी दलीलें क्या हैं, दलीलें उन बै से ताल्लुक़ रखती है जिनके अंदर लुज़ूम पाया जाए, ख़ियार न पाया जाए, तो फिर वो ख़ियारात मुआतात में जारी नहीं होंगे। व बैना गैरहा, गैरहा की जगह पड़ रही है उन ख़ियारात की जो बै के नहीं साबित हैं बल्कि बिल मुआवज़ा, मुआवज़े के लिए साबित किया शारे ने। इस उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए नहीं कि ख़ियारात जो है सिर्फ बै के लिए हों, बल्कि ख़ियारात किसके लिए, मुआमले के लिए अगर हों, अगर ये कहा जाए तो फिर मुआतात में जारी होंगे। वबैन गैरहा का ख़ियारिल गब्न, कहने कि किसी आदमी को भी अगर धोखा हो जाए तो अपने उस धोखे को वापस भरपाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये ख़ियार गब्न क्या है, बै से मुख्तस नहीं है। किसी भी मामले में इंसान को नुकसान हो रहा हो तो उस गबन के होने के, धोखे के होने की बुनियाद पर उसका मुआवजा ले सकता है या उसका बदल ले सकता है। अल्लाह वही मुआवजा कहें बदल करें। वह बैन गैरहा, बल्कि वो ख़ियारात जो मखसूस बिल बै नहीं है बल्कि उसमें इजारे में दीगर चीज़ों में भी जारी होते हैं, कर्ज में जारी होते हैं, वो ख़ियारात अगर हों का ख़ियारुल गब्न वल ऐब बिन्निस्बत इलर रद्द दूनल अर्श फतजरी लिउमूम अदिल्लतिहा, यानी कि वो ख़ियारात जो शारे ने मुख्तस किए हैं बै से, मुआतात में मुमकिन है वो जारी ना हो, कलेमा बै इस्तेमाल किया हो, वाज़े है। लेकिन वो ख़ियारात कि जो बै से मुख्तस नहीं किए हैं, मुसालिहत में, इजारे में, कर्ज में, इन सब चीज़ों में भी अगर इंसान को नुकसान हो जाए या शय ली हुई है उसके अंदर ऐब जाहिर हो जाए, मसलन आप इजारे के तौर पर माइक लेकर के गए, सही, उसमें ऐब निकला, चल नहीं रहा, तो उस क्या है यहाँ पे जो ऐब निकला है उसके मुकाबिल में आप अपना किराया जो कम दे सकते हैं, नहीं सही से चला कम दे सकते हैं, वही यहाँ पे बयान करना चाह रहे हैं कि ख़ियार गब्न हो, ख़ियार ऐब हो, इन सब ख़ियारात का ताल्लुक सिर्फ बै से नहीं है बल्कि दूसरे मामलात में भी चलते हैं, लिहाजा वो भी साबित है मुआतात में। अब क्या करेंगे, अब या तो मुकम्मल तरीके से नुकसान हुआ है तो उसका वापस ले लेंगे, और अगर उसके अंदर कुछ नुकसान हुआ है तो उसका बदल, जितने का नुकसान हुआ है उसको ले सकते हैं। वबैन गैरहा का ख़ियारुल गब्न वल ऐब बिन्निस्बत इलर रद्द, वापस करने के हवाले से, दूनल अर्श, मगर उसके जो नुकसान थोड़ा सा हुआ उसको लेने के लिए नहीं, फतजरी लिउमूम अदल्लतिहा, तजरी की ज़मीन पलटी है ख़ियारात की तरफ, वो ख़ियारात जो बै से मखसूस नहीं है वो सारे के सारे ख़ियारात मुआतात में जारी होंगे, क्योंकि उन ख़ियारात की दलीलें आम हैं, उन ख़ियारात की दलीलें बै से मखसूस नहीं है बल्कि हर मामले से मखसूस हैं, लिहाजा उसका हुक्म चलेगा। अब आइए उस मतलब को जो आप जिक्र कर रहे थे, वाम्मा हुक्म जरयानिल ख़ियार फ़ीहा, जो उससे पहले क़ब्ल लुज़ूम, लुज़ूम से पहले यानी तलफ़ नहीं किया है, तसर्रुफ़ नहीं किया है, जहाँ तक ख़ियार के जारी होने की बात है तो इसके वो बयान हमने हुक्म किया। व अम्मा हुक्मुल ख़ियार बेअदमिल लुज़ूम, बादल, सॉरी मेरे मीम लिखा वो भी गलत है, बादल लुज़ूम फसयाती बाद ज़िक्र मुल्ज़मात, जब हम मुल्ज़मात की बहस करेंगे तो उसके बाद ये हुक्म आएगा, इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुलासे कलाम ये हुआ कि ख़ियारात आप जो बै से मुख्तस हैं